Hello students, today I am going to start, the topic is community pharmacy management. So start with, firstly I will explain what is community pharmacy. So in basic language or in India, community pharmacy is a retail pharmacy or medical store or simply as a drug store. So what is community pharmacy management? Community pharmacy management represent all activity involved in organization and direction of getting people together to accomplish desired goal and objective of pharmacy enterprises. So objective of community pharmacy management, there are two type of objectives, primary objective and secondary objective. So primary objective, to compare the proportion of patient receiving the treatment, to quantify the health gain by describing changes in patients, to evaluate the total cost changes on monetary basis, to conduct medicines management intervention. Secondary objective is to decide the role of non-prescription medicine in patient care management, to set the opinion between stakeholders, to provide and share guidance between intervention and control group. नेक्स्ट इज रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट. सो जो मेन रोल होता है वो फार्मासिस्ट का ही होता है, क्योंकि कम्युनिटी फार्मासिस्ट में जो मेन बैठता है वो फार्मासिस्ट होता है. सो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इज हैंडलिंग ऑफ डे टू डे प्रॉब्लम्स एंड क्राइसिस, मॉनिटरिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मेकिंग अवेयर रिगार्डिंग द साइड इफेक्ट, टॉक्सिसिटी, डोजेस, रेजिमेन ऑफ द ड्रग, economic effect of their activities, transferring health related information and service from one place to another. Pharmacists must recognize appropriate place, time and resources to deliver new services. Basic steps in modern practice of CPM. Basic steps क्या है? सबसे पहले community pharmacy marketing to stakeholder. ठीक है, सर कम्युनिटी फार्मेसी जो मार्केटिंग सबसे पहले स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करेगा. आई मीन जैसे भी कोई भी डॉक्टर्स है, फिजिशियंस हैं या कोई और जो भी शॉप पे या कोई भी और अदर फार्मासिस्ट हैं, इनसे क्या करेगा, पहले मार्केटिंग करेगा. देन डॉक्यूमेंटेशन राइटिंग, देन लॉन्चिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम, देन मैनेजमेंट स्किल ट्रेनिंग, क्लिनिकल स्किल ट्रेनिंग, फिर मॉनिटरिंग, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो उस कम्युनिटी फार्मेसी को डेवलप करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो रिक्वायर है. टोटल जो वहाँ के बिल्स हैं, ठीक है, और जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड चेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें ओवरऑल मैनेज करना, इसका मैनेजमेंट, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स के? फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स हेल्प इन सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, help in forecast of future fund, give an efficient direction of business, helpful to making economy and operating activity. In effective financial planning, financial managers make owner and creditors capital safe and secure by investing it in well businesses. सर फाइनेंशियली कैसे प्लान कर सकते हैं? सिंपल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, बिजनेस. मटेरियल मैनेजमेंट. सो जो भी कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है, जो भी हमारे मेडिसिन आ रहे हैं या जो भी अदर मटेरियल है उस कम्युनिटी फार्मेसी को बनाने के लिए जो भी मटेरियल है, ओवरऑल मटेरियल का जो मैनेजमेंट है वो इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में. तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लानिंग, रिसोर्सिंग, परचेसिंग, मूविंग, स्टोरिंग एंड कंट्रोलिंग मटेरियल in optimum manner. So it is provide as pre-decided service to the customer at the minimum cost. इसके objectives क्या है मटेरियल मैनेजमेंट के? To obtain inventory material for working capital, to purchase material as a minimum price, to establish good vendor customer relationship, to establish an integrated system for reducing duplication of function, to achieve optimum inventory turnover, to achieve best customer service, to search new sources of supply, standardization and equality control, to process plan
एंड इंश्योर परफॉर्मेंस। सो मटेरियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है कि इससे क्या क्या होता है। अगर मटेरियल मैनेजमेंट से गुड क्वालिटी परचेस करेंगे हम, प्राइजेस कम होंगे और एक जो रिलेशनशिप है वेंडर और परचेसर कस्टमर के बीच में वो बनेगा। सो ओवरऑल ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। Importance material management के for faster turnover, for selection of new material, increase personal development staff, establish better inter-department cooperation, reduce material obsolescence and reduce lead time. Staff management. Third is staff management. So staff management एक कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर कौन कौन सा स्टाफ होते हैं। बाइंग टीम होती है, डिस्पेंसरी टीम होती है, बिजनेस टीम होता है, मेल ऑर्डर टीम होती है, मर्चेंडाइजिंग टीम होती है, पर्सनल टीम होती है, एडवर्टाइजिंग टीम होती है। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर की कम्युनिटी फार्मेसी जो बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। इसके लेआउट प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए। जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर उसके बिन्स होने चाहिए, प्रॉपर रैक्स होने चाहिए, रूम अकॉर्डिंग टू जो भी कम्युनिटी फार्मेसी में जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ साइट। साइट इज़ वेल कनेक्टेड विद द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सराउंडिंग शुड बी गुड। ये सारे ओवरऑल रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। देन लेआउट ऑफ स्टोर। सो लेआउट कैसा होना चाहिए। फ्लेक्सिबल इन अरेंजमेंट, कन्वीनियंस इन फिजिकल काउंटिंग ऑफ मटेरियल, आइटम यूज sparingly, should be easy to locate, efficient protection against deterioration, better stock control, efficient use of floor space, safety from hazard, proper illumination, proper security arrangements, heavy and bulky items should be stored as low as possible, shelves and bins deep होनी चाहिए, minimum handling and transportation of material. So ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं प्रॉपर लेआउट के लिए। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ लेआउट प्लान टू क्या ज़रूरी है लेआउट के लिए। अट्रैक्ट द मैक्सिमम कस्टमर्स, टू इंक्रीज द परचेस फ्रॉम ईच कस्टमर, टू इम्प्रूव जनरल अपीयरेंस एंड प्रोफेशनल, टू मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, टू रिड्यूस प्रीफ्रेज थेफ्ट एंड प्रोवाइड सर्वाइलेंस, टू कंट्रोल मूवमेंट इनसाइड द स्टोर। तो किस टाइप का लेआउट होना चाहिए कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, परचेसिंग बढ़ाए एंड अपीयरेंस उसका अच्छा होना चाहिए, चोरी और इन सब से कोई भी चीज़ ख़राब होने से बचाए, इस स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए और कंट्रोल इनसाइड जो भी मूवमेंट है ड्रग का वो कंट्रोल होना चाहिए ताकि कोई भी चीज़ टूटे। फार्मेसी में जो पढ़ चुके हैं ये स्टोरेज कंडीशन है। सो ओवरऑल जो हमने पढ़ा कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के अंदर किस किस का मैनेजमेंट बेसिकली होना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए, स्टाफ मैनेजमेंट होना चाहिए, मटेरियल मैनेजमेंट होना चाहिए एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट होना चाहिए। ये चार मैनेजमेंट कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के अंदर हम डिटेलिंग करेंगे। तो ये चारों मैनेजमेंट बहुत रिक्वायर्ड है किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी बिजनेस को अच्छा टर्नओवर देने के लिए और अच्छा चलाने के लिए। थैंक यू।